Okay, so welcome to the second session of mock question answer discussion. Okay, so let's begin without any further ado. So आम previous class रे 10टा question discuss करथिले ए class रे भी पुणी आउ थरे 10टा question discuss करिवा. So we'll start from the question number 11. So see here, please see. With reference to the current account, consider the following statements. WPI, wholesale price index, measures price changes at the wholesale level reflecting producer side inflation. देखो, it's true, it's not wrong, true. किंतु टेक्निकली जो प्रोड्यूसर साइड इन्फ्लेशन को जदि आपन को मेजर करिवार अछि, देन it is measured not through WPI but through producer price index. WPI is wholesale price index पूर्व गोटे अच्छी कौन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जेहेतु आम इंडिया रे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को आम इंडिया रे यूज आम करूना बुझिपारे तो इन इंडिया वी डू नॉट यूज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स टू मेजर इन्फ्लेशन एट द प्रोड्यूसर लेवल. सो technically we can say yes, this is correct statement. So WPI is used is used to measure producer side inflation. Fine. Okay, and second statement is, through open market operations, RBI buys or sells government securities to manage liquidity. Right or wrong? Huh? Open market एटा हम बुझिथिले हमें ओपन मार्केट रे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पई ओपन मार्केट रे आरबीआई कोन करे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कोन करे गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करिवो बुझ पले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पई सो एज टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम द इकोनॉमी. फाइन. आउ जदी ग्रोथ को प्रमोट करिया पई कोन करिवो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करिवो बुझ पले परचेज सो दैट people could have more money and the demand could increase, demand in employment, production, income, and eventually the growth. So both statements are correct. Fine. Next question is, the term Goldilocks economy is best used to describe which of the following economic conditions? देखो the answer तो होची टा बी हला तो आंसर होची an economy with moderate growth, low inflation and stable interest rates. बुझ पाले such kind of economy जदि आपण को इकोनॉमी को देखिबे जदि ग्रोथ मॉडरेट ग्रोथ अच्छी ग्रोथ इज वेल एनफ गुड एनफ ग्रोथ देन इन्फ्लेशन भी लो इन्फ्लेशन बुझ पाले and interest rates भी stable अच्छी, such kind of economy is called as what? Goldilocks economy, or you can call it as an ideal economy. You can call it as an ideal economy बुझ पाले, which is very rare across the world, which is very rarely seen across the world. बुझ पाले जो कंट्री रे मॉडरेट ग्रोथ भी थिबो, ग्रोथ भी ठीक ठाक थिबो, गुड इनफ ग्रोथ थिबो, लो इन्फ्लेशन भी थिबो और इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल थिबो बुझ पाले, such kind of economy is called as Goldilocks economy and it's rarely seen across the world. Fine, but it's an ideal state of economy. Hello, a Goldilocks economy describes an ideal economic state that is just right, neither too hot or no too cold. बुझ पाले. So this is our next question is, with reference to the current account, consider the following statements. For the first statement is, current account current account capital account बुझ पाले. आ गोटे अकाउंट भी अच्छी प्राय बहरे पाइबेनी से अकाउंट टा फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट फॉरेक्स अकाउंट बुझ पाले फॉरेक्स रिजर्व बुझ पाले फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट जोटा कि हमें क्लास रे डिस्कस करिया फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट कोन बुझ पाले. So current account देखो तो current account, what is the reference to the current account? Consider the following statements. Its deficit, जदि current account रे deficit देखिया को मिलुची, जदि current account रे deficit देखिया को मिलुची, current account रे deficit केतल देखिया को मिलिबो when imports are more than exports. बुझ पाले, when imports of goods and services more than export of goods and services तले हमको current account रे deficit देखिया को मिलिबो बुझ पाले. जदि current account रे deficit देखिया को मिलुची, its deficit can reflect strong domestic demand and investment opportunities. Right or wrong statement? जदि आम बेसी इंपोर्ट करूचे कम एक्सपोर्ट करूचे ताले एटा शो करूचे जे कोन शो करूचे देयर इज ए स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड, लोकन हाथ पैसाटा अच्छी बुझ पारे पैसा अच्छी बोली से कोन बाहर इंटरनेशनल मार्केट रू बेसी गुड्स एंड सर्विसेज किणुचंदी डिमांड करूचंदी बुझ पारे. तार सहित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करूची. जदि फॉरेन इन्वेस्टर देखुचंदी जदि इंडिया रे डिमांड बहुत हाई अच्छी, लोकन हाथ पैसा अच्छी डिमांड बहुत हाई अच्छी ताले सेमाने भी कोन चाहिए इंडिया को आसिक इन्वेस्ट करबा को चाहिए बुझ पारे. सो करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट रॉन्ग, राइट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट, a country can maintain, किंतु देखंतु जदि देखंतु सब बेले
करंट अकाउंट सब इंडिया करंट अकाउंट सब डेफिसिट रुहे बुझिपारे किंतु ताकू बैलेंस कर दिए को अकाउंट कैपिटल बैलेंस तो करें ताकू ठीक ठाक एडजस्ट कर दिए कौन को अकाउंट कैपिटल अकाउंट बुझिपारे ओके so a country can maintain second statement is a country can maintain or even grow reserves if capital inflows exceed the current account deficit exceed the current account deficit देखो दीटा अकाउंट था बैलेंस ऑफ पेमेंट अंडर रे कौन तीनटा अकाउंट था टेक्निकली दीटा था किंतु आ गोटे अकाउंट भी था जोटा कि यूजुअली देखा जाए नहीं बुझिपारल ताको कुआ जाए फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट फाइन आम डिस्कस करवा सो गोटे हूँ करंट अकाउंट गोटे हूँ कैपिटल अकाउंट आ गोटे फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट फाइन फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट को भूली जातु गोटे समय फॉर ए व्हाइल आसतु करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट कौन थाए करंट अकाउंट थाए कौन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बुझिपारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड कैपिटल अकाउंट कौन थाए इनफ्लो एंड आउटफ्लो बुझिपारे इनफ्लो एंड आउटफ्लो से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह जाए कह जाए कौन इनफ्लो एंड आउटफ्लो फाइन सो अ कंट्री कैन मेंटेन और इवन ग्रो रिजर्व्स रिजर्व्स माने को रिजर्व्स फॉरेक्स रिजर्व्स फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बुझिपारे गोटे कंट्री रो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स गुडा को ग्रो करिवो जदी कैपिटल इनफ्लोज एक्सीड द करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट रे हम डेफिसिट अछि करंट अकाउंट रे हमर डेफिसिट अछि माने कोन आमे बेसी इंपोर्ट करूची रादर देन एक्सपोर्ट्स बुझिपारले आमे इंपोर्ट करूची माने सपोज आमे $100 रो आमे एक्सपोर्ट करले किंतु आमे $150 रो इंपोर्ट करले तले हमर डेफिसिट केते हला $50 बुझिपारले ताहले हमको $50 अधिक पे करिया को पड़िबो बुझिपारले आमे अर्न केते करछे डॉलर्स $100 एक्सपोर्ट करिके आमे अर्न केते कले डॉलर्स $100 इंपोर्ट करिके आमे पे केते कले 150 माने डेफिसिट केते डेफिसिट रे अछि हमर 50 किंतु जदि सपोज आमर कैपिटल इनफ्लो जदि $100 अच्छी एक्स्ट्रा $100 अच्छी बुझिपारले $100 अच्छी then it will it will increase the forex reserves of our country बुझिपारछन बुझिपारनंदी $50 दे देले हमें $50 कोन हला forex reserves रे रहिला बुझिपारछन बुझिपारनंदी फाइन so both statements are correct statement then come to the next question देखो answer is D both 1 and 2 are correct statement fine next question देखो it's a current affair question पंडुरु खदी जानथिबे आपण बुझि पले खदी क्लोज मिला पंडुरु खदी recently been awarded the geographical indication tag originates from which of the following regions answer is simply लिखा है आंसर इज ए आंध्र प्रदेश बुझि पारले पंडुरु खदी ट्रेडिशनल हैंड स्पिन and hand woven cotton fabric originates from Panduru village in the Srikakulam district of Andhra Pradesh. It was recently granted the geographical indication tag in the late 2025, early 2026 to protect its authenticity and livelihoods of local artisans. Fine. Next question, please see here. Next question. The debt to GDP ratio is a metric. The debt to GDP ratio is a metric that compares a country's public debt to its gross domestic product, GDP. Second statement होची the debt to GDP ratio is a metric that compares the country's public debt to its national domestic product, NDP. Which statement is right? First statement is right. Debt to GDP ratio माने बुझि पछन्ते debt to GDP ratio माने बुझि पछन्ते debt to GDP ratio माने कोन यदि इंडिया रो जीडीपी होची 100 रुपीस इफ इंडिया's जीडीपी इज 100 रुपीस बुझि पारले डेट टू जीडीपी केमिति कैलकुलेट करा जाय debt upon GDP into 100 so debt India suppose debt होची 50 rupees GDP होची 100 rupees बुझ पारले into 100 केते गेला debt to GDP ratio 50 बुझ पारले debt to GDP ratio केते गेला 50 ता माने इंडिया रो जीडीपी केते इंडिया रो जीडीपी जेति की तारा हाफ होची कोन इंडिया रो डेट बुझ पारले so that is called debt to GDP ratio and debt to GDP ratio is always debt to GDP ratio is a metric that compares a country's public debt to its GDP, not to its NDP. Now let's come to the next question. So here only the only option A is only correct. One only. Okay, next question. देखो ये लिखा है देखो ये डेटा आपन को मन रखिया दरकार. The center has projected the debt to GDP ratio to decline 50 plus minus 1% by March 2031 from an estimated 56.1% in March 2026. बुझ पारले 2026 मार्च रे केते अछि डेट टू जीडीपी रेशियो 56.1 and center project करूची जे कोन the debt to GDP ratio to decline 50 plus 1
प्लस माइनस 1%, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, इफ when the RBI wants to encourage economic activity in the economy, जदि RBI चाहूची जे इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी रे बढ़ू, बुझी पाले, इकोनॉमी बढ़ू किंबा ग्रोथ प्रमोट करिया को जदि चाहूची RBI, ताहले if RBI wants to promote economic activity or encourage economic activity in the economy, it reduces the repo rate, increases the repo rate, reduces the reverse repo, increases the reverse repo, कौन हो, कौन करिवो? आरबीआई जदि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया को चाहूची ताल रेपो रेट रिड्यूस करिवो ना इंक्रीज करिवो? रेट ऑफ इन्फ्लेशन को जदि इंक्रीज करिया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को जदि कंट्रोल करिया को चाहूची ताल रेपो रेट को रिड्यूस करिवो ना इंक्रीज करिवो? If RBI wants to control the rate of inflation, then RBI should increase or decrease the repo rate. Repo rate हम देखते हैं ना? What is repo rate? Repo rate is the rate at which banks borrow from RBI, बुझ पारले? ताले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पे रेपो रेट को इंक्रीज करा जिवो ना कम करा जिवो? इंक्रीज ही करा जिवो, बुझ पारले ना, बुझ पारले नहीं? रेपो रेट को बैंक RBI कौन करिवो? इंक्रीज करिवो, सो एज टू कंट्रोल द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ताहले इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करिवा पई किंबा इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनकरेज करिवा पई रेपो रेट को कौन करा जिवो? कमे, बुझ पारले? सो स्टेटमेंट 1, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, स्टेटमेंट ए इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिड्यूसिंग द रेपो रेट, बुझ पारले? अच्छा, जदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिवा पई आरबीआई कौन करे? रेपो रेट को इंक्रीज कर दिए, बुझ पारले? ग्रोथ को प्रमोट करिवा पई रेपो रेट को कौन करा जाए? रिड्यूस करा जाए आरबीआई, बुझ पारले? अच्छा, जदि रेपो रेट को रिड्यूस करिवो आरबीआई, व्हाट विल हैपन टू रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट will automatically be reduced, बुझ पारले? तुम आरबीआई केबे भी रिवर्स रेपो रेट को चेंज करिवो नहीं। आरबीआई सबुळे रेपो रेट को चेंज करे। रेपो रेट इज अदरवाइज कॉल्ड एज पॉलिसी रेट। आरबीआई सबुळे पॉलिसी रेट को चेंज करे। पॉलिसी रेट को चेंज कला माने ऑटोमेटिकली रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ रेट भी चेंज हो जाती, बुझी पारले? मैं आपको कहिथिल ना पॉलिसी कॉरिडोर विषय कहिथिल ना, बुझितली पॉलिसी कॉरिडोर कोन, बुझी पारले? ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज एट देखो तो अनदर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। चक्र recently launched by the State Bank of India is best described as what? A center of excellence for financing sunrise sectors. A center of excellence for financing what? Sunrise sectors. बुझ पारले? sunrise sectors किछरा sunrise sectors अछि, बुझ पारले? जेमिति sunrise माने कोन? emerging sectors, बुझ पारले? sunrise sectors means emerging sectors. For example, आपनकर रिन्यूएबल एनर्जी हे गला, एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री हे गला, बैटरी स्टोरेज सेक्टर हे गला, बुझ पारले? देन सनराइज सेक्टर्स हलो। ओके, अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अलाउइंग private companies to participate under a public private partnership model to take up large scale saffron cultivation? saffron cultivation जानते हैं अपन? saffron cultivation, बुझ saffron माने जानती हो? saffron माने कौन को जाता को? So, which state is allowing the private companies to participate under a PPP model to take up large scale saffron cultivation? Meghalaya, बुझ पारले? The answer is Meghalaya, हाला? Now let's come to the next question. एटा current affair based questions ला तुम आपण रेगुलरली जदि current affairs देखुतबे ताले ए क्वेश्चन आंसर करि परिबे। Next question is GDP at factor cost includes which of the following? GDP at factor cost includes which of the following? GDP at factor cost हमें देखिथिले factor cost, basic price and market price देखिथिले हमें factor cost, basic price and market price। तो जीडीपी को मेजर करा जाई परिबो एट फैक्टर कॉस्ट रे भी मेजर करा जाई परिबो, जीडीपी को बेसिक प्राइस रे भी मेजर करा जाई परिबो, जीडीपी को मार्केट प्राइस रे भी मेजर करा जाई परिबो। जेतबेले जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट रे मेजर करा जाए कौन कौन इंक्लूड थाए? कौन कौन थाए? Statement A is correct. Only 1, 2, 3 and 4. Indirect taxes न थाए, बुझ पाले? फैक्टर कॉस्ट रे, बुझ पाले? तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस आसीबो केतेबेल को? आपण बेसिक प्राइस कैलकुलेट करिवे तेतबेल भी इनडायरेक्ट टैक्स आसीबो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन टैक्सेस, बुझ पाले? जेतबेल आपण मार्केट प्राइस कैलकुलेट करिवे सेतबेल भी इनडायरेक्ट टैक्स आसीबो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट टैक्सेस, बुझ पाले? तुम सो व्हाट
wages and salaries, rent, interest and profit include होता है बुझ पाले okay the statement answer is A only बुझ पाले wages, rent, interest and profit. next देखो consider the following statements regarding real GDP. Consider the following statements regarding real GDP कौन अछि real GDP eliminates the effect of price changes over time. Real GDP reflects only changes in physical output. Real GDP is always higher than nominal GDP during inflation. Which of the statement is correct? Answer is A, 1 and 2. बुझ पाले 1 and 2. अरे एटा थ्रीटा पूरा एब्सोल्यूट सिंपल स्टेटमेंट रियल जीडीपी इज ऑलवेज हायर देन नॉमिनल जीडीपी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन केमती हम इन्फ्लेशन जदि होउछ माने नॉमिनल जीडीपी वुड बी हायर देन रियल जीडीपी बुझ पारले जना पड़छ स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. So one first statement is real GDP eliminates the effect of what? Price changes over time. Because what is real GDP? Real GDP is current year quantity multiplied by base year price. बुझ पारले तो base year price को हमें कौन पे नउछे so as to eliminate the changes in price over time. बुझ पारले. Second statement is real GDP reflects only changes in physical output. मु कहू by definition real GDP is what? Real GDP is the quantity of goods and services produced in an economy. By definition real GDP is the quantity of goods and services produced in an economy. बुझ पाले मु कहितले एटा भी आपन फाइन. So this is real GDP reflects only changes in what? Physical output. Fine. So answer is A, 1 and 2 only. Fine. Okay. So here we it बंद करिवा आज हैला. नेक्स्ट क्लास रे आउ 10टा क्वेश्चन नै कि आसी. फाइन. So thank you.